آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا امکان، نئی شرائط نہ لگانے حماس کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کی راجیہ سبھا میں بابا صاحب امبیڈکر کی توہین، امت شاہ کو ملک سے معافی مانگنے کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کا مطالبہ۔ تلنگانہ اسمبلی میں نئے ریونیو قانون بل کو بغیر کسی مباحث کے منظوری، قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی کا شدید اعتراض۔ دہلی میں 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگوں کا ہوگا مفت علاج، اروند کیجریوال کا وعدہ۔ گزشتہ چند دنوں سے ضلع عادل آباد میں سردی کی شدید لہر، ضلع بھر کے اسکولوں کے اوقات کار میں معمولی تبدیلی۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدہ چند روز میں ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق قاہرہ میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ چند دن میں جنگ بندی ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ معاہدہ اسی وقت ہوگا جب اسرائیل نئی شرائط نہ لگائے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے باہر ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے، جس میں ہزاروں افراد کی باقیات ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شام سے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک بھر میں لاپتہ افراد کی اجتماعی قبریں منظر عام پر آ رہی ہے، اور یہ اجتماعی قبر بھی انہی میں سے ایک ہے، جس کے باعث بشار الاسد پر ماورائے عدالت قتل عام کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اجتماعی قبر دارالحکومت دمشق سے 25 کلومیٹر شمال میں القطیفہ کے علاقے میں دریافت ہوئی ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو راجیہ سبھا میں آئین پر بحث کا جواب دیتے ہوئے آئین کے خالق بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی توہین کی ہے، اس لیے انہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور انہوں نے امت شاہ سے کہا کہ وہ ملک سے معافی مانگے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وزیر اعظم نریندر مودی کو انہیں برطرف کرنا چاہیے۔ ملکارجن کھرگے نے چہارشنبے کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک خصوصی پریس کانفرنس میں کہا کہ پارلیمنٹ میں آئین کی منظوری کے بعد سے 75 سال کے شاندار سفر پر راجیہ سبھا میں بحث کے جواب میں مسٹر شاہ نے بابا صاحب کی توہین کی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بابا صاحب کے حوالے سے حکمران جماعت پر طنز کیا۔ ابھی ایک فیشن ہو گیا ہے، امبیڈکر 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 امبیڈکر، اتنا نام اگر بھگوان کا لیتے ہیں تو 7 جنموں تک سورگ مل جاتا۔ امت شاہ ڈسکشن کر رہے تھے، ہم نے جب وہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں بول رہے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ امبیڈکر امبیڈکر 100 بار پکارتے ہو، اتنا ہی اگر آپ 100 بار بھگوان کا نام اگر لیتے تو آپ 7 بار سورگ میں جاتے تھے۔ یعنی بابا صاحب امبیڈکر کا نام لینا یہ گناہ ہے، اور ان کی بنائی ہوئی سمویدھان کو وروध کرنا ان کی منشا تھی۔ یعنی وہ کیا بہت بڑے آدمی تھے؟ آپ بھگوان کا نام لینے کا کام نہیں کر رہے، امبیڈکر امبیڈکر بول رہے، یہ ایسا انہوں نے بات کیا۔ تب میں نے ہاتھ اٹھایا، تب ان کو ایلڈ ہونے کے لیے کہا، لیکن مجھے وہ موقع نہیں ملا۔ حالانکہ اسی وقت میں یہ اٹھا کر گڑبڑ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب پارلیمنٹ چل رہی تھی تو ہم سبھی لوگ مل کے اس کے لیے جو کوآپریٹ کر کے ڈسکشن بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان پہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے ہم وہ اس وقت خاموش بیٹھے۔ I demand his resignation۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بی جے پی اپنے اقتدار والی ہر ریاست میں یکساں سول کوڈ لاگو کرے گی، جیسا کہ پارٹی نے اتراکھنڈ میں کیا تھا۔
आइन इख्तियार किए जाने के 75वां साल शुरू होने के मौके पर राज्यसभा में बहस मुबाहिसे के अख्ताम पर अमित शाह ने मुल्क भर में यूसीसी लागू करने में नाकामी पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की। वजीर दाखिला ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत करने का इल्जाम लगाया और पार्टी से कहा कि वो इस बात की वजाहत करे कि एक सेक्युलर मुल्क में हर मजहब के लिए एक मुश्तरका कानून क्यों नहीं लागू हो सकता। वजीर दाखिला ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक लगाए गए इल्जामात पर भी सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र के नताइज के बारे में शिकायतें की, उन्होंने झारखंड में जश्न मनाया जहां इंडिया इत्तेहाद को असम्बली इंतखाबात में कामयाबी मिली है। आइन के 75 साल के सफर के बारे में राज्यसभा में पीर को बहस शुरू हुई थी जो 2 दिन तक जारी रही। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। मैं बताता हूं मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं, वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब हमारी पार्टी इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाएगी, हम संजीवनी योजना स्कीम नाफिज करेंगे और दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्गों का मुफ्त इलाज करेंगे। केजरीवाल ने चारशिंबे को कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो 60 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। मुसलमानों के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तलब किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही में 5 जजों पर मुश्तमिल कॉलेजियम ने मंगल को 45 मिनट तक जस्टिस यादव से सवालात किए और इनके बयान पर नाराजगी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को नसीहत की कि आइंदा अवामी तकारीब में अपने आईनी ओहदे की हरकत को बरकरार रखते हुए मोहतात अंदाज अपनाएं।
कॉलेजियम में चीफ जस्टिस खन्ना के साथ जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस S ओक भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को नसीहत की कि आइंदा अवामी तकारीब में अपने आईनी ओहदे की हुर्मत को बरकरार रखते हुए मोहतात अंदाज अपनाएं। जस्टिस शेखर यादव ने वजाहत देते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा हुआ। ताहम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इनके इस वजाहत से मुतमईन नहीं हुआ। कॉलेजियम ने इन पर जोर दिया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इनके अल्फाज और अमल को निहायत बारीकबीनी से परखा जाता है और वो अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने वाले बयानात देने से गुरेज करें। दिल्ली की एक अदालत ने चारशंबे को साबिक JNU स्कॉलर उमर खालिद को 7 दिन की उबूरी जमानत दी है, जिन्हें 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात में मुबीना किरदार के लिए UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद 28 दिसंबर को एक शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे और इन्हें 3 जनवरी 2025 को दोबारा अदालत के सामने पेश होना होगा। उमर खालिद उन कई नौजवान कारकुनों में शामिल हैं जिन्हें फरवरी 2020 में दिल्ली में होने वाले फसादात से मुताल्लिक़ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना कानून साज असम्बली में हुक्मरान जमात कांग्रेस ने पेशरू BRS हुकूमत की जानिब से मुतारुफ करदा ROR 2020 रेवेन्यू कानून की जगह तेलंगाना रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स 2024 बिल को पेश किया। वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने वक्फे सवालात के बाद आज ऐवान में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने BRS दौर में मुतारुफ करदा धरनी पोर्टल को खत्म करते हुए नए तेलंगाना रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स बिल को पेश किया है। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल की वजह से किसानों समेत हर तबके के अवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना था, जिसकी वजह से कई किसानों और दीगर अफराद की अराजियात को पेशरू हुकूमत ने इनकी मिल्कियत से महरूम कर दिया था। कांग्रेस ने पार्टी इंतखाबात के दौरान ही किसानों और अवाम से इस बात का वादा किया था कि धरनी पोर्टल को खलीज बंगाल में फेंक कर नए कानून को मुतारुफ किया जाएगा। अगरचे कि इस अमल के लिए हुकूमत को 1 साल लग गया, ताहम काफ़ी बारीकबीनी से जायज़ा लेने के बाद इस नए कानून को तैयार किया गया है। इसके लिए जारिया साल 2 अगस्त को मसूदा तैयार करते हुए अवामी राय हासिल करने के लिए वेबसाइट में पेश किया जाएगा, जिस पर अवामी मुंतखबा नुमाइंदों, माहिरीन, रिटायर्ड ओहदेदारों, शोरा और समाज के दीगर अहम शख्सियात की राय हासिल की गई। इसके अलावा इस नए रेवेन्यू कानून की तैयारी के लिए रियासत के 33 अजला में अवामी समाअत मुनक्किद करते हुए सबकी राय हासिल की गई है। मुल्क की 18 रियासतों के ROR एक्ट का जायजा लिया गया और इनमें से 72 तरीक़ेकार को अपनाते हुए इस नए कानून को तैयार किया गया है। Honorable Speaker Sir, I beg to introduce the Telangana Bhubharati Record of Rights in Lands 2024. रियासती असम्बली में पेश करदा नए रेवेन्यू कानून तेलंगाना रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स 2024 बिल को बगैर किसी मुबाहिस के मंजूरी देने हुक्मरान जमात की कोशिश के खिलाफ कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने शदीद एतराज़ किया। असम्बली में वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से इस बिल को पेश करने के बाद वो बिल के खदोखाल को तफसीली तौर पर ऐवान में पेश कर रहे थे। इस दौरान कायद मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि असम्बली के बिजनेस एजेंडे को गुज़िश्ता रात 12 बजे अरकान को रवाना किया गया और आज सुबह इस बिल को ऐवान में पेश करते हुए इसे मंजूरी देने की कोशिश की जा रही है, जबकि अरकान असम्बली को इस बिल पर एतराज़ात और तरमीमात पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल पर तमाम अरकान की राय हासिल करने के बाद इनके एतराज़ात और तरमीमात का जायज़ा लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने वजीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू की जानिब से पेश की गई इस दलील को मानाखेज करार दिया कि पेशरू BRS हुकूमत के दौर में तैयार करदा असम्बली के कवायद के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई को चलाया जा रहा है। उन्होंने वजीर उमूर मुक़न्नना को मशवरा दिया कि वो पेशरू हुकूमत की गलतियों को न दोहराएं। गलतियों की वजह से ही BRS पार्टी आज हुक्मरान से अपोजिशन में आ गई है। अगर कांग्रेस भी वही रवैया इख्तियार करती है तो आने वाले दिनों में उनका भी यही हाल होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस मुतालिबे के बाद BRS रुकने असम्बली हरीश राव और CPI के रुकने असम्बली के सांबा शिवा राव ने भी इस अहम बिल पर अपोजिशन जमातों की राय हासिल करने का मुतालिबा किया, जिस पर वजीर उमूर मुक़न्नना D श्रीधर बाबू ने कायदे मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी को तयक़ुन दिया कि हुकूमत अपोजिशन के एतराज़ात को कबूल करेगी और ज़रूरत पड़ने पर बिल में तरमीम भी करेगी।
انہوں نے کہا کہ اگر اسپیکر اسمبلی دوسرے دن مباحث کی اجازت دیتے ہیں تو حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ریاست کی اہم اپوزیشن BRS نے اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار سے ملاقات کرتے ہوئے فارمولا ای ریزنگ کے موضوع پر اسمبلی میں بحث کی اجازت دینے کی خواہش کی۔ اس خصوص میں BRS پارٹی نے اسپیکر کو ایک تحریری یادداشت بھی پیش کی۔ واضح رہے کہ BRS دور حکومت میں حیدرآباد میں منعقدہ فارمولا ای کار ریسنگ میں بدعنوانی ہونے کے انکشاف کے بعد حکومت نے اس وقت کے وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ اور ایک سینئر IAS عہدیدار کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرتے ہوئے ان سے پوچھ تاچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے KT راما راؤ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے گورنر سے اجازت حاصل کر لی ہے اور گورنر کی منظوری کے بعد چیف سیکریٹری شانتی کماری نے اینٹی کرپشن بیورو کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ای کار ریسنگ میں ہوئی بدعنوانی کی تحقیقات کرنے کی درخواست کی۔ BRS کے ارکان اسمبلی و ارکان کونسل آٹو میں اسمبلی پہنچے۔ آدرش نگر MLA کوارٹرز سے اسمبلی تک آٹو میں ارکان اسمبلی اور کونسل سفر کرتے ہوئے اسمبلی پہنچے۔ سفر کے دوران KTR نے خود آٹو چلایا۔ انہوں نے ریاست میں آٹو ڈرائیوروں سے کیے گئے وعدوں کو فوری طور پر پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی نے دونوں ایوانوں میں اس خصوص میں تحریک التوا بھی پیش کی جس میں اس معاملے پر بحث کا مطالبہ کیا گیا۔ آٹو ڈرائیور سے انصاف کے نعرے لگاتے ہوئے BRS لیڈروں نے آٹو ڈرائیوروں کو درپیش مالی پریشانیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان مالی پریشانیوں کی وجہ سے ریاست میں 93 خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان اموات کو سرکاری قتل قرار دیا۔ کانگریس انتظامیہ پر انتخابات کے دوران آٹو ڈرائیورز سے کیے گئے وعدوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے مہلوک آٹو ڈرائیورز کے خاندانوں کے لیے فوری مدد کا مطالبہ کیا اور آٹو ڈرائیوروں کے لیے 12,000 روپے کی مالی امداد کا فوری اعلان کرنے کا مطالبہ کیا جس کا انتخابات کے دوران کانگریس نے وعدہ کیا تھا۔ BRS رکن اسمبلی تارک راما راؤ کے علاوہ ہریش راؤ اور دیگر ارکان مقننہ خاکی شرٹ بھی پہنے ہوئے تھے جو ڈرائیوروں کی علامتی ڈریس ہے۔ ఆటో కార్మికులకి వెంటనే కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. ఆటో కార్మికులను వెంటనే ఆదుకోవాలి. ఆటో కార్మికులను వెంటనే ఆదుకోవాలి. ఆటో కార్మికులను వెంటనే ఆటో డ్రైవర్ల ఐక్యత. ఆటో డ్రైవర్ల ఐక్యత. ఆటో కార్మికులను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے منی پور کے فسادات اور گوتم اڈانی پر عائد مالی بے قاعدگیوں کے الزامات پر مرکز کی BJP حکومت کی پالیسیوں کے خلاف چلو راج بھون احتجاجی پروگرام منظم کیا گیا۔ اس احتجاجی پروگرام میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سمیت بیشتر ریاستی وزراء اور کانگریس کے اہم قائدین نے حصہ لیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر اور وزراء راج بھون کے قریب پولیس کی رکاوٹوں کے باعث سڑک پر بیٹھ کر کافی دیر تک احتجاج کیا۔ یہ احتجاجی ریلی PCC صدر مہیش کمار گوڑ کی قیادت میں شہر کے نیکلس روڈ پر واقع اندرا گاندھی کے مجسمے سے نکالی گئی تھی جو راج بھون تک آنے والی تھی۔ تاہم راج بھون سے پہلے ہی پولیس نے اس ریلی کے راستے پر رکاوٹیں حائل کر دی تھی جس کی وجہ سے ریلی راج بھون تک مارچ نہیں کر سکی۔ سڑک پر ریونت ریڈی اور دیگر قائدین نے کافی دیر تک بیٹھ کر احتجاج کیا۔ ریونت ریڈی نے اڈانی کی مالی بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی اور اڈانی ایک ہی ہیں۔ मोदी जी जज्बाती में मत जाओ। आप जज्बाती में जाने से अदानी को कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ लिए तो अमेरिका में उनको कैसा भी वहाँ पर फांसी लगने वाले हैं क्योंकि अमेरिका में जितना फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है वो हिसाब से ये बचने वाले नहीं है।
इसीलिए अपने आदमी को अमेरिका जेल को भेजना चाह रहे हैं, नहीं तो आपके भाई को तिहाड़ जेल में बिठाना चाह रहे हैं। ये दो ही रास्ता है आपके सामने। एक, अदानी अमेरिका जेल में बैठने का आप मौका देंगे, नहीं तो अदानी को तिहाड़ जेल में बिठाने के लिए आप कोशिश करेंगे। ये दो रास्ता के अलावा आपको कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी आपसे डिमांड कर रहा है, तुरंत जेपीसी डालो। जेपीसी नहीं डालने के वजह से अदानी बचने वाले नहीं है। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद दिनों से ज़िले आदिलाबाद में सर्दी की शदीद लहर और दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट के बाइस ज़िले भर के स्कूलों के औकातकार में मामूली तब्दीली की है, जिसके मुताबिक ज़िले आदिलाबाद के स्कूल जुमेरात से सुबह 9:40 से शाम 4:30 तक चलेंगे, जबकि स्कूल के औकात 9:15 से शाम 4:15 तक है। ज़िले भर में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से दर्जे हरारत में काफ़ी कमी देखी जा रही है और 2 दिन से आदिलाबाद ज़िले के कई मकामात पर दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस के अंदर पहुंच गया है, जिसके पेश नज़र ज़िले भर के स्कूलों के औकात में तब्दीली लाई गई है। सोशल मीडिया पर जल्द शोहरत और अपनी रील्स पर लाइक्स व शेयर बढ़ाने के लिए अनोखी हरकत करने वाले नौजवान के खिलाफ तेलंगाना के घटकेसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस नौजवान, जिसकी शिनाख्त बालानगर के यूट्यूबर भानुचंदर के तौर पर की गई है, उसने इंस्टाग्राम पर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड के करीब रकम फेंकते हुए एक रील बनाई और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसने मनी हंटिंग चैलेंज के उन्वान से ये रील बनाते हुए रकम सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दी और इस रील को देखने वालों से ख्वाहिश की कि वो इस रकम को हासिल करने के लिए उसके तलाश के लिए इस मकाम पर पहुंचे। इस रील पर उस नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि ORR पर फेंकी गई रकम को हासिल करने बड़ी तादाद में लोगों के आने और हादसात का खदशा है। మన ఓఆర్ఆర్ అథారిటీస్ నుంచి మనం కాంప్లైంట్ తీసుకొని చేయించడం జరిగింది. అందులో చీటింగ్ ఉంది, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, వివిధ రకాలైన మనకు యాక్ట్ పెట్టడం జరిగింది. ఎండేంజరింగ్ లైఫ్ ఆఫ్ పర్సనల్ సేఫ్టీ అండ్ అదర్స్. కనుక యూజింగ్ కరెన్సీ నోట్స్ కూడా దానికి సంబంధించి కూడా ఒక సెక్షన్ పెట్టడం జరిగింది. అదే हैदराबाद में आउटर रिंग रोड से मुतसिल 23 किलोमीटर तवील सोलार रूफटॉप साइकिल ट्रैक का 80 मीटर हिस्सा हटा दिया गया। साबराबाद पुलिस की हिदायत के मुताबिक साइकिल ट्रैक को 80 मीटर तक हटा दिया गया है। नानाकरमगुड़ा जंक्शन से बाहरी रास्ते से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आमद होती है। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए माई होम अवतार जंक्शन पर एक नया रैंप बनाने का फैसला किया गया है। इस तरह माई होम अवतार, पुप्पलगुड़ा, मनीकोंडा और नारसिंगी की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए इससे आसानी होगी। ताहम साइकिल ट्रैक को हटाए जाने पर सोशल मीडिया पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड ने इस मुहिम की तरदीद की है कि वो साइकिल ट्रैक को मुकम्मल तौर पर हटा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ट्रैफिक की रवानी को मुनज़्ज़म करने के लिए पुलिस की हिदायत के मुताबिक 80 मीटर ट्रैक को हटाना पड़ा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चारशंबा 18 दिसंबर की सुबह लक्ष्मीगुड़ा जलपल्ली रोड के दोनों अतराफ की तजावुजात को मसमार कर दिया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स की भारी नफरी तैनात की गई थी। GHMC के मुताबिक दुकानदारों को इन्हिदाम की इतला पहले ही दी गई थी। इनसे शेड हटाने को कहा गया, लेकिन इनमें से सिर्फ चंद लोगों ने ही अपने शेड निकाले। आज बुलडोजर की मदद से शेड्स को बाहर निकाला और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया गया। ये कार्रवाई कई मकामी लोगों की शिकायत के बाद की गई।
नामपल्ली की एक अदालत ने लगाचरला में जिले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर पेश आए हमले के वाक़े में मुलजिम बनाए गए बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी की जमानत मंजूर कर दी। इस केस में नरेंद्र रेड्डी को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया था, जबकि इस केस के दीगर 24 मुलजिमीन को भी अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने साबिक़ रुकन असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी को 50,000 रुपये के शख्सी मचलके और दीगर मुलजिमीन को 20,000 रुपये के शख्सी मचलके को पेश करते हुए जमानत हासिल करने की हिदायत दी। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। रियासती दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी शदीद सर्दी की लहर दर्ज की गई है। आसिफाबाद जिले में सरपुर में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसके बाद आदिलाबाद के बेला में दर्जे हरारत 6.0 डिग्री सेल्सियस रहा। हैदराबाद के मुताद्दद इलाकों में गुज़िश्ता 48 घंटों में वाहिद हिंदसे में अक़ल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में चहारशंबे की सुबह अक़ल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मौसमी आदाद शुमार की बुनियाद पर मंगल की रात और चहारशंबे की सुबह के दरमियान हैदराबाद में सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। राजेंद्र नगर में 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। BHL में 10.9 डिग्री सेल्सियस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे का इम्कान, नई शराइत न लगाने हमास का मुतालिबा। वजीर दाखिला अमित शाह ने की राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन। अमित शाह को मुल्क से माफी मांगने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मुतालिबा। तेलंगाना असम्बली में नए रेवेन्यू कानून बिल को बगैर किसी मुबाहिस के मंजूरी। कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी का शदीद एतराज़। लेली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल का वादा। गुज़िश्ता चंद दिनों से जिले आदिलाबाद में सर्दी की शदीद लहर। जिले भर के स्कूलों के औकात कार में मामूली तब्दीली। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।